हेलो स्टूडेंट्स, আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10 হিন্দী ইলেক্টিভ সাবজেক্টত থকা চেপ্টাৰ 9 এই পাঠটো আলোচনা কৰিম। চেপ্টাৰ 9ত আছে এখন কবিতা। কবিতাখনৰ নাম হ'ল জ বিত গই। এই কবিতাখনৰ অন্তৰ্গত অভ্যাসমালাত থকা যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে অতি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰা হ'ব। প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ অতি চুটিকৈ লিখি দিয়া হৈছে আৰু ক্লাছটোৰ শেষত কবি পৰিচয়ৰ পৰা আৰু পাঠটোৰ পৰা যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম। পাঠটোৰ শেষত আমি প্ৰথমতে অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্নখিনি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম, ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ কবি পৰিচয়ৰ পৰা হওক বা পাঠটোৰ পৰা হওক যিমানখিনি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে গোটেইখিনি আলোচনা কৰা হ'ব। চ' তোমালোকে ক্লাছটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা। এতিয়া আমি পাঠটোৰ অভ্যাসমালাত থকা প্ৰশ্নখিনি আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকে এই কবি পৰিচয়খিনি ভালকৈ পঢ়ি ল'বা আৰু যদি কবি পৰিচয়খিনি ভালকৈ নপঢ়া ক্লাছটো শেষলৈকে চাবা। ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে মই লাষ্টত সজাই দিছোঁ। এতিয়া অভ্যাসমালাৰ প্ৰথমত কি আছে? অভ্যাসমালাৰ প্ৰথমত দি আছে বোধ এবং বিচাৰ। 1 নম্বৰ কৈছে সহি বিকল্প কা চয়ন কৰো, অৰ্থাৎ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। এতিয়া ক নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে হৰিবংশ ৰায় বচ্চন কা জন্ম হুৱা থা। প্ৰথমতে কৈছে सन 1905 में। 2 নম্বৰত কৈছে सन 1906 में। 3 নম্বৰত কৈছে 1907 में আৰু 4 নম্বৰ অপশ্যনত দিয়া আছে 1908 में। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈছোঁ কবি পৰিচয় পঢ়াটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰতিটো কবি পৰিচয়ৰ পৰা দুটামান প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা, ডাইৰেক্ট ইয়াত দিয়া আছে হৰিবংশ ৰায় বচ্চন কা জন্ম 27 नवंबर 1907 के इलाहाबाद में हुआ था। অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ যে 1907 চনত হৰিবংশ ৰায় বচ্চন কা জন্ম হুৱা থা। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন কোনটো হ'ব? 3 নম্বৰ 1907। ইয়াত উত্তৰ লিখি দিয়া আছে, ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা सन 1907 में। এতিয়া খ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে কবি ने इस कविता में बीती बात को भुलाकर क्या करने का संदेश दिया। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 1 বৰ্তমান কি চিন্তা, মানে বৰ্তমানৰ চিন্তা এৰি কি কৰিব লাগিব। ইয়াত কৈছে কবি ने इस कविता में बीती बात को भूलकर क्या करने का संदेश दिया। बीती बात মানে হৈ যোৱা কথাটো, যোনটো ঘটনা হৈ গৈছে এইটো পাহৰি গৈ কি কৰিব কৈছিলে, বৰ্তমানৰ চিন্তা কৰিব গৈছে। যি হ'ল হৈ গ'ল সেইটো এতিয়া পাহৰি গৈ বৰ্তমানৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কবিয়ে। এতিয়া অভ্যাসমালাৰ 2 নম্বৰত কৈছে সংক্ষেপ্ত মে উত্তৰ দ, অৰ্থাৎ চমুকৈ উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक मनाता है। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक नहीं मनाती है। ইয়াত কি কৈছে, অম্বৰ মানে হৈছে আকাশ আৰু তাৰা মানে তোমালোকে গম পোৱা তৰা কি বস্তু হয়। যদি এটা নিজৰ পচন্দৰ এটা তৰা ভাঙি পৰি যায় তেতিয়া আকাশখনে কি দুখ বা শোক পালন কৰে নেকি? ইয়াত কৈছে নকৰে, যে अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक नहीं मनाता है। তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে हमें मधुबन और मदिरालय से क्या मिलती है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है এইটো। उत्तर হ'ব हमें मधुबन और मदिरालय से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार उपवन अपने मुरझाए हुए कलियों एवं फूलों के सूखने को लेकर कभी शोर नहीं मचाता है, मदिरालय अपने प्रिय प्याले के टूट जाने पर कभी दुख प्रकट नहीं करता है। তাৰপিছত এতিয়া দিয়া আছে যে कवि ने अंबर के अनन को देखने की बात क्यों की है। उत्तर হ'ব कवि ने अंबर के अनन को इसीलिए देखने की बात इसीलिए कही है कि वह अपने बेहद प्यारे तारे को टूटे हुए देखकर भी निर्विकार
रहता है। अर्थात मनुष्य को अपने दुखों को याद करके शोक मनाना अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को निर्विकार চিন্তা का ही অধিকাৰ होना चाहिए। ঠিক আছে, এই প্ৰশ্নকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অতি চমুকৈ লিখা যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা ভালকৈ পঢ়ি ল'বা তোমালোকে। তাৰপিছৰটো প্ৰশ্নত কৈছে प्यालों के टूट जाने पर मदिरालय क्यों नहीं पश्चाताप करता। यार शुद्ध उत्तर হ'ব যে प्यालों के टूट जाने पर मदिरालय इसीलिए पश्चाताप नहीं करता क्योंकि मृदु मिट्टी से बने हुए प्याले लघु जीवन लेकर आए हैं। इससे मदिरालय के दारू पीने वालों का अभाव नहीं होता, मधु के घट का भी कमी नहीं होता। मादकता के मारे लोग मदिरालय को नहीं छोड़ सकता, अर्थात मदिरालय को पश्चाताप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रश्न कैसे जे मधु के घट और प्यालों से किन लोगों का लगाव होता है। इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रश्न तो उत्तर हब मधु के घाट और प्यालों से जो मादकता है मारे अपने जीवन को तुच्छ मानता है उन लोगों का लगाव है। तार पिछर प्रश्न कैसे जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, इससे कवि क्या कहना चाहते हैं। उत्तर हब जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, इससे कवि यह कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को जीवन जीने का तरीका अच्छी तरह से आता है वे लोग दुखों की परिस्थितियों में भी खुश खोज लेते हैं। ऐसे लोग वर्तमान को लेकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। तार पिछरটো प्रश्नत कैसे जे उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना किन किन चीज़ों से की गई है। उदाहरण से उत्तर दो। ये उदाहरण हब उदाहरण से उत्तर दो। उत्तर हब जे उक्त कविता में मानव जीवन की तुलना अंबर के टूटे हुए तारों, उपवन के मुरझा गई फूल और मदिरालय का टूटा हुआ प्यालों के साथ की गई है। तार पिछर प्रश्न सुधिसे इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर हब इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने बीते हुए दुखों को भूल जाना चाहिए। अपने दुखों को स्मरण कर शोक में समय बिताना अच्छी बात नहीं है। हमें वर्तमान की सुखों को लेकर ही जीवन का आनंद लेनी चाहिए। इतिया नेक्स्ट की दिया से सम्प्रसंग व्याख्या करो। इतिया कवितार পৰা কিছুমান বাক্য উঠাই দিয়া হৈছে, এইবোৰ কি কৰিব লাগিব व्याख्या কৰিব লাগিব। যেনেকৈ ক নম্বৰ व्याख्यात আছে जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। এইটো व्याख्या কৰিব লাগে। व्याख्या কৰিলে কি হ'ব प्रसंगतो কি হ'ব যে यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 এই কিতাপৰ নাম নিলিখিলেও হ'ব, তোমালোকে डायरेक्ट लिखिब पारा जे यह पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत कवि हरिवंश राय बच्चन विरचित शिक्षाप्रद कविता जो बीत गई से ली गई है। তোমালোকে এইখিনি নিলিখিলেও হ'ব, ঠিক আছে, অকল এইখিনি লিখিলে হ'ব। মই যেখিনি দাগ দি দিছোঁ এইখিনি লিখিলে হ'ব। এইখিনি লিখাৰ পিছত কি লিখিব লাগিব যে संदर्भ की संदर्भत कथाखारी कैसे। सो इसमें कवि ने मनुष्य जीवन का आकांक्ष के माध्यम से शिक्षा देने की प्रयास किया है। इतिया व्याख्यात की लिखिब লাগিব जे यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि जिन तारों के कारण आकाश जगमग
करता है वो आकाश बेहद प्यारा होता है, पर वो डूब या टूट जाने पर आकाश का दीप्ति भी चली जाती, तब भी आकाश निर्विकार रहता है। वर्तमान की स्थिति पर ही वो अविचल रहता है। कभी मनुष्यों को आकाश की तरह अविचल रहने का परामर्श दिया है। ख नंबर व्याख्यात আছে मृदु मिट्टी के ही बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले फूटा ही करते हैं। उत्तर हब प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो बीत गई शीर्षक कविता से ली गई है। संदर्भ हब इसकी रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। इसमें कवि ने मनुष्य जीवन के मधुघट और मधु प्याले से तुलना करते हुए जीवन की मादकता के बारे में बताया है। व्याख्या हब जे कवि के अनुसार मधुघट कोमल मिट्टी द्वारा बनाया जाता है। यह मिट्टी पर गिरकर टूट जाते हैं। इसका स्थायित्व कम है, लेकिन इस विषय पर मधुशाला कभी दुख प्रकट नहीं करती है, क्योंकि प्याले जैसी क्षणस्थायी वस्तु टूट तो जाएगा ही। इसी तरह अपने दुख को याद कर शोक मनाने से जीवन के बाकी समय को सुखपूर्वक बिता देने ही अच्छा है। এইটো ফুল ষ্টপটো কাটি দিবা, তোমালোকে লিখিব নালাগে। আৰু পাঠৰ শেষত তোমালোকৰ এনেকৈ শব্দাৰ্থ এবং টিপ্পনী দিয়া আছে, এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'বা, কাৰণ পৰীক্ষাত শব্দ অৰ্থ, বিপৰীত শব্দ অৰ্থ, সমাৰ্থক শব্দ অৰ্থ লিখিবলৈ আহে। আৰু এই পাঠৰ শেষত থকা শব্দাৰ্থ এবং টিপ্পনী ইয়াৰ পৰাই প্ৰশ্নৰ মানে শব্দৰ অৰ্থবোৰ দিয়া দেখা যায়। চ' যেনেকৈ চিতাৰা, চিতাৰাৰ অৰ্থ হৈছে তাৰা, বেহদ, অত্যাধিক, বহুত, অম্বৰ, আকাশ, नव वस्त्र, आनंद, सिर, चेहरा, मस्तिष्क, कुसुम, फूल, नित्य, प्रतिदिन, हर रोज, निशावर, তাৰপিছত এনেকৈ মধুবন। এইবোৰ তোমালোকে ভালকৈ সুন্দৰকৈ কিন্তু এটা এটা ৱাৰ্ডৰ অৰ্থ ভালকৈ পঢ়ি ল'বা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন এনচাৰ। এইবোৰ কবি পৰিচয় আৰু পাঠৰ পৰা যিমানখিনি আহিব পৰা সম্ভাৱনা আছে তাৰ পৰা বনোৱা হৈছে। 1 নম্বৰত দিয়া আছে जो बीत गई के कवि कौन है। उत्तर होगा जो बीत गई कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन है। तारपिছত हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। यार उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन 27 नवेम्बर 1907 को हुआ था। मनत राखिबा भालके। तारपिছত 3 नम्बर प्रश्नत কৈছে जे अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर क्या अंबर कभी शोक मनाता है। यार शुद्ध उत्तर होगा नहीं मनाता है। अपने प्रिय तारों के टूट जाने पर अंबर कभी शोक नहीं मनाते। तो क्या तो काटी दिबा তোমালোকে। তাৰপিছত এতিয়া 4 নম্বৰত কৈছে যে हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। कत হৈছিলে इलाहाबादत হৈছিলে। তাৰপিছত দিয়া আছে कवि ने इस कविता में बीती बात को भुलाकर क्या करने का संदेश दिया है। यार शुद्ध उत्तर की होगा जे कवि ने इस कविता में बीती बात को भुलाकर वर्तमान की चिंता करने का संदेश दिया है। तारपिছত नेक्स्ट प्रश्न दिया से कौन शोर मचाता है। यार उत्तर होगा मधुबन शोर मचाता है। तारपिছত नेक्स्ट दिया से हरिवंश राय बच्चन का मृत्यु कब हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का मृत्यु 2003 में हुआ था। सो এইবাৰ খুবই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহিব পৰীক্ষাত। मधुशाला किसका काव्य ग्रंथ है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का काव्य ग्रंथ है। তাৰপিছত কি দিয়া আছে हरिवंश ने कौन सी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यार उत्तर होगा हरिवंश ने काशी विद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन का पिता का नाम क्या था। हरिवंश राय बच्चन का पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव था। तारपिছত नेक्स्ट प्रश्न दिया আছে যে कुसुम कहाँ था। यार उत्तर होगा कुसुम जीवन में था। तारपिছত नेक्स्ट दिया আছে हरिवंश राय बच्चन कब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता रहे।
उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता रहे। तारपिছত नेक्स्ट दिया আছে कि जे हरिवंश राय बच्चन कितने वर्ष तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न करते भारत लौटे। यार उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन को 2 वर्ष तक इंग्लैंड में शोध कार्य संपन्न करके भारत लौटे। तारपिছত नेक्स्ट प्रश्न दिया আছে जे मधु के घट और प्यालों से किन लोगों का लगाव होता है। वेरी इंपॉर्टेंट उत्तर होगा मधु के घाट और प्यालों से जो मादकता के मारे अपने जीवन को तुच्छ मानता है उन लोगों का लगाव होता है। तारपिছত नेक्स्ट प्रश्न कैसे है हरिवंश राय बच्चन ने कौन से कॉलेज में शिक्षा प्राप्त किया। उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन ने गवर्नमेंट कॉलेज में शिक्षा प्राप्त किया है। सो स्टूडेंट्स এইখিনিতে এই পাঠৰ অন্তৰ্গত গোটেইখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ক্লাছটো বুজি পাইছা। বুজি পালে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ সকলোকে।